वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शहीद? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हाउ आर यू? All good. Yeah, you were sick the other day, right? That's what you said, no? या आई वाज या आई वाज Okay. बट आई हैव डन ऑल द लेक्चर्स जो भी परफेक्ट कंपटीशन के नहीं थे, आई हैव डन ऑल ऑफ Yeah. देम। Okay. Great. Um, सर, I kind of I kind of understand why you said that it's hard to remember the stuff because there's like so many like details to remember. I know that's the whole thing. Honestly, before the exam, even you're gonna feel कि यार मुझे कुछ आता भी है कि नहीं है. But the only thing Yeah. which can get you through is कि अगर आपने इसकी इतनी rigorous practice की हुई हो, continuous writings की हुई हो, तो वो एक muscle memory बन जाती है and that sort of like helps a lot. जैसे even today will I'll, I try to fit in के एक दो essays हो जाएं but because of the details that we need to go into तो फिर हम ज्यादा कर भी नहीं सक रहे हैं बट इवेंचुअली एक एक दफा जैसे इवन आज का जो हमारा क्वेश्चन है let me show you which question we're doing today. Obviously the question has to do with perfect competition and a little bit of efficiencies. I'm trying to put in a little bit of efficiencies with it. At any point, if I'm losing my voice or something or there's lag, do let me know. तो फिर मैं I'll change my internet. Uh, right now I'm at my institute, so उसकी वजह से जो है is a different internet I'm using. But anyhow, एक question है जो मुझे काफी अच्छा लगा. It is, I believe, from past papers. Let me show it to you. Okay. So in fact, let me write this before we start with this. No? Let me write the question. You guys can also write this question. The model of perfect competition is the ideal form of market structure because it is the most efficient, full stop. With the help of diagrams, comma, evaluate this statement. So this is a 20 marker because अब तो हमारे पास 20 mark के ही सिर्फ questions आते हैं. So this is the question that we're going to be dealing with. In fact, there is one topic that I haven't done with you. I was hoping कि वो वाला topic जो है मैं आज इसी topic के साथ ही उसको include करके सारी बातें कर लें basically. I think it's a doable task. Okay. So, this particular question is from November 23, variant 42, question 3A. ठीक है? As we already know, the question का जो structure होता है वो किस तरीके से जाता है. So, सबसे पहले जो है, if you read this question, let's go over this question one more time. The model of perfect competition is the ideal form of market structure because it is the most efficient. A few terminologies which I know needs to be talked about in detail.
एक तो ऑब्वियसली परफेक्ट कंपटीशन का जो मॉडल है वो इन इट सेल्फ एक बहुत लेंदी फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है। एंड यहाँ पे जो एक बात हुई है एफिशिएंट की, इज द मोस्ट एफिशिएंट। तो दैट मीन्स कि हमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, और एक एफिशिएंसी का टॉपिक है जिसमें आप प्रोडक्टिव और एलोकेटिव की बात करते हैं। In my lectures, where we've discussed perfect competition in the short run and in the long run, and we've done the diagrams, वहां पे I have given hint of allocative efficiency and productive efficiency. So basically, that needs to be done. So the way we can do this is, just to remind you once again, आपका 20 marker is broken down into two parts, a 14 mark part of the essay and a 6 mark part of the essay. In 14 mark, basically assessment objective 1 and assessment objective 2, which is knowledge, understanding, and analysis, they both are collectively marked at different levels. So in order to go to level 1, all you have to do is मुझे perfect competition को अच्छे से समझा दो कि what perfect competition is, थोड़ी बहुत efficiency की definitions वगैरह दे। लेवल 2 पे जाने के लिए ऑब्वियसली अपने परफेक्ट कंपटीशन और एफिशिएंसी को किसी तरीके से इंटीग्रेट करके दिखाना है। एंड लेवल 3 के लिए विद द यूज ऑफ डायग्राम्स यू कनेक्ट परफेक्ट कंपटीशन with efficiencies. And then for 6 marks, you have to do the evaluation, which is also measured in level ones and level two. लेवल 1 में आपको 1 to 3 मार्क्स मिल सकते हैं, और लेवल 2 में आपको 4 to 6 मार्क्स मिल सकते हैं बेसिकली। ठीक हो गया। um, the way I would go about this question, if I was to do it in a more detailed form, there is always an introduction that you can start off with. जैसे आपने एक इंट्रो दे दिया परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, जैसे कि perfect competition is one of the ideal form of market structures, जिसके अंदर जो है you could say something like कि इसको हम यूज कर सकते हैं as a benchmark for efficiency। इसके अंदर कई किस्म की एफिशिएंसीज हो सकती हैं, जैसे एलोकेटिव, प्रोडक्टिव, डायनामिक एफिशिएंसीज। आई विल टॉक अबाउट दिस। सही है। सो एक परफेक्ट कंपटीशन के मॉडल के अंदर जो है वी कैन अचीव एलोकेटिव एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अंडर सर्टेन कंडीशंस, especially in the long run। इस तरीके से somewhere along this line, if you want to do an intro, you can. If you don't, no problem whatsoever, and you can go directly into the questions. Your question should start off always with some market features, sorry, some characteristics कह लो या features of perfect competition कह लो। I think it's a wise thing to always start off in terms of this, that perfect competition जो है ना is an is more of a theoretical market structure असल के अंदर। It's a theoretical market structure uh, based on several uh, assumptions। अब जब आप वो assumptions को टेस्ट करते हैं ना रियलिटी के अंदर, तो यू रियलाइज कि यार इट्स नॉट एक्चुअली फॉलोइंग थ्रू ऑल आवर assumptions that we made। तो assumptions के अंदर we would want to avoid numbering, but if we had to, one of the things that you should write about is the type of product it has। So perfect competition में एक assumption ये है कि जो product है is identical या
similar या homogeneous, these are the terms used, which means that there is no differentiation between goods sold by different firms. ठीक है, तो पहली चीज हमने बता दी प्रोडक्ट के बारे में। फिर दूसरी चीज हम क्या कहते हैं? देयर आर large number of buyers and sellers, okay, and each seller is too small to influence market price. Therefore, each firm is a price taker. Key very important words when we are explaining the features, na? So these are very important bits of information that we're putting it out there. फिर इसके अलावा और फीचर्स बताएं, ये दो फीचर्स से तो काम नहीं चलेगा, वी नीड मोर फीचर्स। तो एक फीचर हम ये भी लिख सकते हैं अबाउट नॉलेज, दैट देयर इज परफेक्ट knowledge among buyers and sellers about price, so कौन कहाँ पे कितना का क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, बायर को भी पता है, सेलर को भी पता है। अच्छा, नॉट ओनली जस्ट प्राइस, इट कुड बी इवन लाइक फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसको पता है कि कहाँ पे सबसे सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी कौन सी है टू मेक दिस प्रोडक्ट। Remember, almost we'll assume that everyone even has like identical technologies, identical production processes. किसी के पास किसी किस्म का कोई edge नहीं है. Now we can see that, realistically, that is just not possible, right? Also, there are no barriers to entry and exit from the industry. If you're making good competition, good profits, and anyone is interested in getting involved in the business, they can. There is no barriers which is stopping them. They can easily come into the market and easily sell the product. Okay, so that's just some of the features that I'm talking about. Again, or the features if you can think of, you can definitely write those. तो ये जो हमने फीचर्स लिखे हैं, ये फीचर्स कर क्या रहे हैं बेसिकली? ये जितने भी अभी ऊपर हमने ये मेंशन किए हैं, लेट मी शो इट यू अगेन। व्हाट आर ऑल दीज असम्पशंस डूइंग? बेसिकली ये सबको, सब सेलर्स को एक लेवल के ऊपर बेसिकली खड़ा कर रहा। ठीक है, कि हर कोई एक ही तरीके का है। शुड यू गिव एन एग्जाम्पल? डेफिनेटली यू शुड गिव एन एग्जाम्पल। किस चीज के बारे में कह सकते हो? कौन सा एग्जाम्पल? अगर ये सारी बातें आप किसी एग्जाम्पल के साथ चलाना चाहते हैं, तो आई थिंक अ गुड एग्जाम्पल कुड बी a fruit seller in the market, because they're all equally powered, similar equipment, no unique selling point, pretty much everyone selling the same stuff, so बिल्कुल आप कर सकते हैं। और बायर्स भी बहुत हैं, सेलर्स भी अनगिनत हैं, किसी सेलर के पास किसी किस्म की पावर नहीं है।
ठीक है, मेजोरिटी देखो। देखो, द रीजन व्हाई आई सेड एट द बिगनिंग कि ये एक थ्योरेटिकल आइडिया है इज बिकॉज रियलिटी के अंदर businesses do have some sort of differentiation. If they don't have the differentiation and the product is identical, then क्या होता है, किसी के पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हो जाती हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं, किसी के पास अच्छी लोकेशन होती है, किसी का कुछ नहीं तो भाई एक बहुत ही अच्छा बिहेवियर होता है। अ, तो वो कस्टमर्स हैं उसके उसके साथ उसकी शॉप को प्रेफर करते हैं। Now, if you say कि bicycle sellers, I don't think so that they are in perfect competition. Bicycles are very specialized product. They are brands which have different technologies and intellectual properties on it. तो इसकी वजह से that is not one of the things जिसके ऊपर मैं बोलूंगा कि right. अगर आप पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं तो you can say समथिंग लाइक, अगर आप कहते हैं जैसे नॉट द रिक्शा कंपनी बट द रिक्शा सर्विस। Every rickshaw driver has the same rickshaw, doing the same routes, same technology, almost identical product, almost identical, service that they're providing. So they're all the same exactly. But I'm again saying I'm talking about the company, I'm talking about the service. Um, सही है, हमारे यहाँ बहुत सारी बिग शॉप्स हैं, एग इंडस्ट्री है जिसके अंदर कंज्यूमर रियली कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स एग्स जस्ट लुक्स द सेम जस्ट लाइक एनी अदर वेजिटेबल और फ्रूट्स। So there is no way for me to tell any sort of difference in the product, और कस्टमर भी नहीं बता सकता। Yeah, I've mentioned the bun kebab wala also. So, hard for consumer to identify good from the competition. ठीक हो गया। वंस यू डू द फीचर, तो फिर हम एक आध दो बातें और कर लेते हैं इसके ऊपर, लाइक नॉट फ्रॉम द फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू बट समथिंग लाइक that what these features are doing. So I can write like these assumptions together. I hope you're also writing this essay with me. That's part of the whole drill. Creates a highly competitive environment where market price is determined by the interaction of market demand and supply। ठीक है, और उसके बाद जो हर फर्म होती है वो हम अज्यूम करते हैं कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स होते हैं। ठीक, एवरी फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। So they all produce where MR equals to MC for them, right? तो उस बारे में अभी थोड़े से आगे जाके बात करेंगे, लेकिन दिस इज व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट। अब एक सिंगल फर्म के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू नेक्स्ट। Okay, remember the question is about efficiency and all of that. One of the things, should I do it right now? Because question के अंदर हमने efficiency को भी लेकर आना है। तो Sir, um, sorry, I have a question. yeah, Sir, would we bring in like uh, abnormal profit and normal profit to talk about efficiency? Because yeah, we need to do that because efficiencies change in that. The way I'm thinking is, I'm thinking right now that should I just define the terms productive and allocative efficiency right now, and then go into the detail. I think I should explain it right now, कि productive or allocative efficiency क्या होती है, and then in my short run and long run, I will explain
what I need to do. Yeah. So I think I will explain allocative and productive efficiency right now in terms of efficiency. ठीक है? So what I'll write is that there are two key forms of efficiency. Okay. One is called productive efficiency. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब ये होता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एक तो नंबर वन इसकी एक कंडीशन है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हाउ डू यू प्रूव दैट वेदर यू हैव प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और नॉट तो हम लिखते हैं दैट दिस यानी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अकर्स व्हेन फर्म्स produce at the minimum point of the average cost. मैं AC लिख रहा हूँ. First, you always have to write the whole thing. Average cost curve, implying that all resources are being fully utilized with no waste, something along this line. Yeah. So all your resources are used at the best point. अब जहां तक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम बात करेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये सिनेरियो आपके पास तब अचीव होगा जब हम देखेंगे कि जो भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो क्या वहां पे हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरी बात जो हम देखेंगे विच इज एलोकेटिव एफिशिएंसी, क्या हमारे रिसोर्सेज बेस्ट जगह पे या बेस्ट गुड्स के अंदर एलोकेटिव एफिशिएंसी है, क्या हम बेस्ट जगह के ऊपर उन रिसोर्सेज को अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो दिस अकर्स व्हेन प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। इसका क्या मतलब है, मीनिंग द वैल्यू कंज्यूमर प्लेस ऑन ए गुड विच इज वैल्यू क्या प्लेस कर रहे हैं, जो प्राइस वो दे रहे हैं, equals the cost of the resources used to produce it। अब ये वाला जो पॉइंट होता है ना, असल में ये एलोकेटिव एफिशिएंसी वाला ये बड़ा फंडामेंटल पॉइंट है हमारे लिए, बिकॉज एसेंशियली यहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई कर्व आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि मीट करता है। और एएस में हमने ये सीखा है कि जहां डिमांड और सप्लाई मीट करता है वहां पे नो शॉर्टेज नो सरप्लस वाली सिचुएशन होती है। तो इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि एट दिस पॉइंट सोशल वेलफेयर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड एंड देयर इज नो डेड वेट loss. Deadweight loss is basically loss to society in terms of कि जब आप अपने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस को मैक्सिमाइज नहीं कर रहे होते हैं, you're producing lesser quantity or something like that, and consumer and producer surplus
are at their greatest possible level. I can't go into the detail of this, but over the term, जब आप course ये कर रहे होंगे, तो we will come across something or the other situation where we're going to do these diagrams and we're going to prove that कि देखें जी ये बात सच है कि डिमांड सप्लाई जब आपका होता है तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस अपने हाईएस्ट पे होता है और जब आप दूसरा कोई मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं trying to avoid the words even, but when you're doing monopoly, oligopoly, and monopolistic competition, तो उसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि जी डेड वेट लॉस क्रिएट होता है. ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट विल कम अ लिटिल लेटर. अभी के लिए हमने एफिशिएंसी भी कर दी. मेरे ख्याल के अंदर लेवल 1 मैक्सिमम मार्क्स यू शुड गेट फॉर नाउ. इनफैक्ट ऑलमोस्ट वी went into level 2 के domain में also. But that can't be done without the diagram. So, kyunki, let me go back to the question because so that we don't lose track of what we're trying to do here. The question is, the model of perfect competition is the ideal form of market structure because it is the most efficient. तो diagrams के साथ you have to evaluate. I think हमने perfect competition को अच्छे से explain कर दिया है. हमने efficiency को discuss कर लिया है. There is a third type of efficiency also, which I might bring it a little later, जिसको आप डायनामिक एफिशिएंसी कहते हैं. We'll come to that in just a bit. Won't talk about it right now. Um, P equals, in the scenario of P equals to MC, how will the producer be profitable? Good question. देखें जब P equals to MC है ना, it is about for every extra unit that you are producing, आपकी प्राइस, आपकी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को हर एक्स्ट्रा यूनिट मैंने जो बनाया मैं देखूंगा अच्छा इसमें मैं कितना कमाऊंगा इस एक्स्ट्रा यूनिट पे और इस एक्स्ट्रा यूनिट के ऊपर मुझे क्या कॉस्ट आ रही है. ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ यूनिट्स होंगे जिसके अंदर मुझे ज्यादा मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा होगा मार्जिनल कॉस्ट से. तो जब हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे ना तो हम एवरेज कंडीशंस को देखेंगे कि ऑन एवरेज आप कितना कमा रहे हैं और ऑन एवरेज आपकी कॉस्ट क्या आ रही है. तो जस्ट होल्ड ऑन टू दैट थॉट और उस बात को अभी मैं क्लैरिफाई कर देता हूं. व्हाट यू जस्ट आस्क्ड मी कि हम जब P इक्वल्स टू MC करते हैं कि जो प्राइस इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर रख रहा है तो उस प्राइस के ऊपर आप कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं. उस पर्टिकुलर आखिरी यूनिट पे नहीं होगे लेकिन उससे पिछले यूनिट्स के ऊपर आप हो सकते हो. सो लेट मी शो यू अ डायग्राम. दिस इज हाउ द डायग्राम इज मेड. ठीक है. द क्वेश्चन एक तो नंबर वन अगेन मैं दोबारा तुमको क्वेश्चन के एक रेफरेंस दे दूं. उसने कहा द मॉडल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज आइडियल एंड उसके अंदर मोस्ट एफिशिएंट है. तो ऑब्वियसली मुझे एक सिंगल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्ग्यूमेंट करनी होगी कि एक सिंगल फर्म के साथ क्या सिनेरियो है. तो दिस इज व्हाट आई डू नेक्स्ट. आई गो इनटू द डिस्कशन के शॉर्ट रन के अंदर. तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं. सो आई स्टार्ट माय पैराग्राफ बाय लाइक इन द शॉर्ट रन some firms may earn supernormal profit. By the way, I call it abnormal profit in my lectures all the time. So please don't get confused. You can use them interchangeably. So I'm writing that in the short run, some firms may earn supernormal profit, normal profit, and economic losses. I personally prefer to say कि firms short run के अंदर super normal profit कमाती हैं, economic loss कमाती हैं. नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग रन के अंदर कमाती हैं.
ठीक है। लेकिन जब आप लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं तो दैट मीन्स आप शॉर्ट रन के अंदर भी नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट रन के अंदर भी हो सकता है। There's a question that yeah, normal profits, subnormal profits, these were all covered in Unit 4. And I think I have done a pretty lengthy essay on it also in previous classes. So you can take a look at those ones also. अभी मैं डायग्राम्स के थ्रू इसको मैं आपको करा रहा हूँ कि डायग्राम के थ्रू फिर हम किस तरीके से इसका डायग्राम बनाते हैं। तो लेट्स लुक एट कि अगर एक सिंगल फर्म है, ठीक है, वो सिंगल फर्म किस तरीके से एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती है। तो उसका जो डायग्राम आपने जल्दी से बनाना है वो ये बनाना है कि एक सिंगल फर्म जो है, आई थिंक वी शुड मेंशन ओवर हियर कि आई एम डूइंग इट फॉर अ सिंगल फर्म, नॉट एन इंडस्ट्री। एक सिंगल फर्म प्राइस टेकर होती है, ठीक है। इंडस्ट्री ने उसको बताया किस प्राइस के ऊपर आप ये प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो डिमांड इज इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू प्राइस। ओके, ये आपका बेसिकली एक सिंगल फर्म का डिमांड कर्व है। लेट्स से कि ये आपका एक फ्रूट सेलर है जो बनानास बेचता है या एग्स बेचता है। मिल्क शॉप एग्स बेचती है, एक पर्टिकुलर प्राइस ऑफ डजन है और वो एक्स नंबर ऑफ यूनिट बेचने में इंटरेस्टेड है। उसको ये प्रोडक्ट बनाने के अंदर एक मार्जिनल कॉस्ट इनकर होती है। मार्जिनल कॉस्ट जब उसकी आ जाती है, विच इज बेसिकली द सप्लाई कर्व फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, तो ये जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है वो ये क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है मार्केट के अंदर। ये इसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी है। ठीक है जी। अब क्या होता है, अब होता कुछ यूं है कि हमने कहा शॉर्ट रन में जी दो किस्म की प्रॉफिटेबिलिटीज पॉसिबल है। एक आपकी है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सो आई एम गोना मेक वन एज अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, आई कैन मेक द लेफ्ट वन एज अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब हम बनाते हैं तो मुझे पहले से ही पता है कि इसका जो डायग्राम बनना चाहिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, उसमें एवरेज कॉस्ट इस तरह से गिरता है, नीचे की तरफ होता है और फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। when you make your average cost, sorry, average cost है, a few things you have to be a bit mindful about कि फर्म ने डिसाइड किया है कि वो बनाएगा P इक्वल्स टू एम सी या एम आर इक्वल्स टू एम सी की बेसिस पे। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन होती है। थिंक वी माइट हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर। ये लोग बनाएंगे इधर इस प्राइस के ऊपर ये क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेंगे। अब इस क्वांटिटी के ऊपर अगर मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखा रहा हूं तो एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है। लेकिन जब मैं अपना एवरेज कॉस्ट बनाता हूं तो आई नीड टू बी माइंडफुल कि मेरा एवरेज कॉस्ट की जो मिनिमम पॉइंट है दैट शुड टच द मार्जिनल कॉस्ट। इसके पीछे अगर आप वो लेंदी लेक्चर्स देखें मेरे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लेक्चर्स, उसके अंदर विद नंबर्स आई हैव प्रूव कि नंबर्स खुद ही आपको डायग्राम एवरेजेस और मार्जिनल्स के इस तरह से बनेंगे मैथमेटिकली दैट दीज कंडीशंस विल फॉलो थ्रू। अब जब आपने ये डायग्राम बना दिया तो मैं अपना एबनॉर्मल प्रॉफिट का रीजन मार्क कर लूंगा। मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट जो हो रहा है वो Q0 के ऊपर मैंने मार्क कर लिया कि देखें जी इस तरीके से ये जो एरिया मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं ये मेरा एब नॉर्मल प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। दूसरे एंड के ऊपर जब मुझे इकोनॉमिक लॉस बनाने की जरूरत है तो मुझे पता है इकोनॉमिक लॉस के अंदर एवरेज कॉस्ट इज सपोज टू बी अबव एवरेज रेवेन्यू। तो मेरा जो डायग्राम बनेगा एवरेज कॉस्ट का
वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, मिनिमाइज ऑन द मार्जिनल कॉस्ट एंड देन इट ऑन इट्स वे अप। अब जब मैं अपना लॉस दिखाऊंगा तो मैं इस तरीके से यहाँ पे शो करता हूं कि देखें वही क्वांटिटी क्यू ओ के ऊपर एवरेज कॉस्ट इज ऑन द हायर साइड एंड एवरेज रेवेन्यू इज ऑन द लोअर साइड। और ये बिजनेस जो है ये इकोनॉमिक लॉस कर रहा है शॉर्ट रन के अंदर। आई थिंक आई शुड मेंशन ऑन द डायग्राम्स कि ये मैं बना रहा हूं एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, और ये मैंने बनाया है इकोनॉमिक लॉस का, और ये दोनों शॉर्ट रन के अंदर हो रहे हैं। द पर्पस दैट आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज देखो मेरा क्वेश्चन था अबाउट एफिशिएंसी, कि परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल मॉडल इन मार्केट स्ट्रक्चर्स जो बेस्ट एफिशिएंसी शो करता है। तो मैंने जो ऊपर एलोकेटिव और प्रोडक्टिव की डिस्कशन की है, अब मैं उसको यहाँ पे ला के दोनों डायग्राम्स को इंडिविजुअली I can discuss, and I'll walk the examiner through what I have done in my diagrams. ठीक है? तो सबसे पहले if I take my left one, I will mention a few things. कि a single firm in perfect competition has a horizontal demand curve where demand is equals to average revenue, which is equals to marginal revenue equals to price। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब भी मैं एक डजन बनाना या एक डजन एग्स बेचूंगा, तो वो पर डजन जो मुझे प्राइस मिलेगी वो ही मेरा एवरेज रेवेन्यू है पर डजन का। कि मुझे हर दफा एक डजन पे अगर 250 रुपये मिल रहे हैं द प्राइस, मैंने रेवेन्यू 250 रुपये जनरेट किया, और हर एक्स्ट्रा डजन जो मैं बेचूंगा उस पे मुझे 250 रुपये मिलते जाएंगे। ये चैप्टर 4 के अंदर हमने इसको न्यूमेरिकली प्रूव किया है। ठीक है? उसके बाद आई विल राइट कंटिन्यूएशन के अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग perfectly competitive firms equilibrium। ये इक्विलिब्रियम कहलाया जाता है बाय द वे, जो ऊपर मैंने जो क्वांटिटी डिसाइड की है ना, इक्विलिब्रियम is where MR equals to MC, or in this case P equals to MC, because remember MR और P सेम ही है, राइट? तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो मैं एक्चुअली कह सकता हूँ कि P equals to MC की कंडीशन इज द वन दैट आई एम फॉलोइंग। ठीक है? फिर उसके बाद थोड़ा सा इसकी एबनॉर्मल प्रॉफिट की प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लेते हैं, जो कि समथिंग लाइक आई कुड से दैट द shaded area between average revenue and average cost represents supernormal profit। Average revenue is greater than average cost। अब एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट मी ब्रिंग द एफिशिएंसी के आर वी अचीविंग द एफिशिएंसी वी बीन टॉकिंग अबाउट। अब जब ये फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट सॉरी जब ये फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या ये एलोकेटिवली एफिशिएंट है कि नहीं है? तो मैं ये लिखूंगा दैट सिंस एट क्यू ओ price is equals to marginal cost, the firm is allocatively efficient।
is allocatively efficient, but since at QO average cost is not at minimum, the firm is productively inefficient. And I can prove that. डायग्राम में आए और देख लें मेरे साथ कि अगर आप डायग्राम में नोटिस करें तो डायग्राम में देखें जी, इक्विलिब्रियम आ रहा है P इक्वल्स टू MC के ऊपर। दिस इज द क्वांटिटी दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। इस क्वांटिटी के ऊपर P और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं एलोकेटिवली एफिशिएंसी है। ठीक है। लेकिन अगर आप एवरेज कॉस्ट को देखें, थोड़ा अगर मैं इस बात पे जूम इन कर लूं, तो अगर आप देखें इस क्वांटिटी के ऊपर एवरेज कॉस्ट इधर है और एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट कम क्वांटिटी पे है। क्योंकि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजर हैं और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर है, तो हम स्लाइटली ऑन द अपिश साइड है। एनीथिंग, इनफैक्ट इसको ऐसे याद रखो, एनीथिंग ऑन द राइट और द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट मीन्स कि आप एलोकेटिवली, सॉरी, प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट रेंज के अंदर है। तो ये बात हमने फाइनलाइज कर ली है कि शॉर्ट रन में जब फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती है तो वो एलोकेटिवली एफिशिएंट तो होती है, प्रोडक्टिवली नहीं होती है। नाउ वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड अर्लियर वाज कि जब P इक्वल्स टू MC होता है तो फर्म प्रॉफिट कैसे कमा सकती है। तो मैंने उस पर कहा कि देखें जी, P इक्वल्स टू MC हर यूनिट के ऊपर चेंज हो रहा है। क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है तो P तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो प्राइस तो वही है। लेकिन मार्जिनल देखें, पहले यूनिट के ऊपर मार्जिनल, मार्जिनल यानी प्राइस जो है वो यहाँ है, जो आपको मिल रही है, और जो इसको बनाने की कॉस्ट आई है वो यहाँ आई है, तो आपने मार्जिनल प्रॉफिट कमाया। आप कहते हैं जब तक मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं मैंने और बनाना है। फिर जब मैंने सेकंड यूनिट बनाया, प्राइस वही है, मार्जिनल कॉस्ट और गिर गई, मैंने और ज्यादा सेकंड यूनिट पे प्रॉफिट कमाया। थर्ड पे भी कमा रहा हूँ, फोर्थ पे भी कमा रहा हूँ, और जब तक प्राइस इज ऑन द हायर साइड देन मार्जिनल कॉस्ट, मेरी प्रॉफिट्स में इंक्रीज आता जा रहा है अप अंटिल दिस पॉइंट। इसके बाद मेरी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गई है, मार्ज और प्राइस कम हो गई है, आई एम लूजिंग मनी फॉर ईच एक्स्ट्रा यूनिट। तो मैं कहता हूं भाई पीछे आओ, दिस इज द बेस्ट पॉइंट। ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है P इक्वल्स टू MC या MR इक्वल्स टू MC की बेसिस पे। ठीक है, कि हर एक्स्ट्रा यूनिट पे जो रेवेन्यू कमाया उसको आप कंपेयर करेंगे हर एक्स्ट्रा यूनिट की कॉस्ट पे। लेकिन जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि फाइन, वी डिसाइडेड QO की क्वांटिटी, कि हम QO बना रहे हैं। अब QO के ऊपर आप देखेंगे कि ऑन एवरेज आपको कितने पैसे मिले, जो कि फिक्स्ड है क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं हो रही। जब हम इम्परफेक्ट मार्केट्स पढ़ते हैं ना, दैट इज वेयर दिस नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट मोर। तो एवरेज कॉस्ट जो है वो नीचे है, इतने यूनिट बनाते हैं तो एवरेज कॉस्ट यहां आ रही है। तो आपने असल में एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को कंपेयर करना है कि ऑन एवरेज पर यूनिट क्या हो रहा है, वो आपको बताएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है। समटाइम्स P इक्वल्स टू MC के ऊपर हो सकता है आप प्रॉफिट ना कमा रहे हो। समटाइम्स P इक्वल्स टू MC पे ये भी हो सकता है कि आप इकोनॉमिक लॉस कमा रहे हो। बल्कि इनफैक्ट लेट्स टेक अ लुक एट इट। देखें जी, सेकंड डायग्राम। So the previous diagram that we did was supernormal profit का. This one we're doing is economic loss का. अब देखें इसमें क्या हो रहा है. I'll do the same write-up for this one also. I won't repeat this part के डिमांड कर्व perfectly elastic होता है, MC और equilibrium ये है. But what I can continue with is this point that at equilibrium
quantity of QO, P equals to MC, and since average revenue is less than average cost, the firm is making a, oh, sorry, no, economic loss. In books and other notes, you might come across term like subnormal profit. Please don't get confused. It just simply means कि normal profit से भी आप नीचे production कर रहे हैं. तो आप economic loss कह लें इसको या subnormal profit कह लें. It's absolutely up to you. I have no issues whatsoever with it. ठीक है जी. लेकिन what we're saying is कि हम efficiency के point of view से इस question को deal कर रहे हैं. तो what we want to talk about is कि uh, at QO P equals to MC, therefore firm is allocatively efficient. अब डायग्राम के अंदर आप देखें कि क्या इस QO की क्वांटिटी पे हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है. तो एक नजर अगर आप उधर डालें तो मेरे डायग्राम से तो बजाहिर लग रहा है कि यार ये देखो ये तो फ्लैट है, ये मेरे डायग्राम में एरर है असल के अंदर. What I should have done was I should have taken it a little more lower because marginal cost के ऊपर minimum होता है. ठीक है. So if I'm unable to show that, that means मैंने एक छोटा error किया हुआ है अपने डायग्राम में. But I know for a fact that it can't be on the same level. The curve was supposed to go slightly on the lower side after this point. तो मैं उस बात को यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर सकता हूँ that we are allocatively inefficient. लेकिन जहां तक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात, सॉरी, एलोकेटिवली एफिशिएंट, बट since average cost is not at its lowest point, we are productively inefficient. Okay, Ji. So many kids have this problem that they face an issue with allocative and productive. की efficiency का क्या मतलब होता है. तो ऊपर we did try to define this idea. इसको ऐसे सोचें. चलो एग्जाम्पल, सेम फ्रूट सेलर की बात हो रही है. ठीक है. फ्रूट सेलर जो है बनानास बेचता है और 300 रुपये, 300 तो नहीं बट लेट्स सपोज 150 रुपये डजन बेच रहा है वो. ठीक है. दैट इज द प्राइस विच द मार्केट हैज टोल्ड. अब ये जो फ्रूट सेलर बैठा है ये एक ऐसी मार्केट में बैठा है जहां 50 बंदा और बैठा हुआ है और बनानास बेच रहा है. अब जब कंज्यूमर आता है, कंज्यूमर भी एक आदमी आ रहा है, देयर आर मेनी consumers, many buyers. It's sort of like a southern market, fruit market, you can say. Now, the person who's come in, he's going to see that all bananas in this market is exactly the same. They can't tell the difference between the bananas, what everybody's selling, and let's assume that product is identical. There is no bada, chota, kharab, fresh, ye wo nahi. Everyone has the identical one. So the price is fixed, and you can't even change the price. लेकिन जितने भी फ्रूट सेलर वहां पे बैठे हुए हैं सबकी अपनी अपनी मार्जिनल कॉस्ट हो सकती है. लेट्स सपोज जो ठेले पे बैठे हैं, जो फ्रंट की दुकानें हैं उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, जो पीछे गली में बैठे हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो सकती है. द स्पेस कैन मैटर. हो सकता है पीछे से जो इनके सप्लायर्स हैं उसमें एक छोटी मोटी कॉस्ट स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं. बट आवर अजम्पशन इज दैट एवरीबडी हैज द सेम कॉस्ट स्ट्रक्चर. जब हर किसी का कॉस्ट स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है तो हर प्रोड्यूसर 150 की प्राइस के ऊपर जहां उसकी मार्जिनल कॉस्ट आएगी वो इतने डजन बेचने बैठा है कि ये बंदा कह रहा है मैं आज 50 डजन बेचूंगा. ठीक है. 50 डजन में बेचने आया हूं एट द प्राइस ऑफ 150. ये मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल है.
एंड दिस आर्ग्यूमेंट कैन बी डन फॉर बोथ द डायग्राम्स. लेट्स सपोज शॉर्ट रन के अंदर दोनों के साथ यही सिनेरियो है, 150 के ऊपर 50 की बात हो रही है. ओके. लेकिन टर्न्स आउट कि एक सिचुएशन के अंदर शॉर्ट रन के अंदर एवरेज कॉस्ट बहुत कम आ रही है, और एक सिचुएशन, इट्स नॉट हैपनिंग एज ऑफ राइट नाउ, बट एक सिचुएशन है जिसमें एवरेज कॉस्ट इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड. इट कुड बी बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट, इट कुड बी ड्यू टू एनी रीजन. अब चक्कर क्या है, जब आपकी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज ऑन द लोअर साइड, आपने डिसाइड किया है कि 150 की प्राइस के ऊपर मैक्सिमम, इसी प्राइस के ऊपर मैं बेच रहा हूं 1 डजन भी और 50 डजन भी, मेरी जो कॉस्ट आ रही है वो कम के अंदर जो है वो थोड़ी सी कम मार्जिनल कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है मेरी वेरिएबल कॉस्ट राइज कर रही है तेजी से, जिसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट यहां पर आके 150 के बराबर हो जाएगी. इस पॉइंट के बाद 51 डजन जब मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे उस पे जो कॉस्ट आ रही है वो ज्यादा आ रही है, और जो मुझे पैसे मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं. तो मैं 51 डजन नहीं बेचूंगा, मैं 50 यूनिट्स के ऊपर मैक्स सेलिंग करूंगा. लेकिन मेरी जो एवरेज कॉस्ट आ रही है दैट इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, मेरी एवरेज कॉस्ट आ रही है 100 की. तो मुझे तकरीबन तकरीबन 50 रुपए बच रहे हैं पर डजन. और 50 × 50 करता हूं तो मेरे पास आ जाती है तकरीबन कितना बनेगा, 2500. 7, 2500. Okay. So we're making about 2500 in abnormal profits. नॉर्मली तो हमें ये पता है, दैट विल बी द लेटर पार्ट ऑफ माय एसे, कि जब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मैं कमा रहा हूंगा तो उस एरिया में देखेंगे कुछ फ्रूट सेलर्स जो दूसरी कहीं और बेचते थे, वो देखेंगे कि यार सदर मार्केट के अंदर तो लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, वहाँ कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट भी कम है, एंड वी शुड गो एंड वी शुड सेल. और द थिंग इज, क्योंकि एंट्री और एग्जिट में कोई बैरियर्स ही नहीं है, कंपटीशन आएगा, और जब कंपटीशन आएगा तो मार्केट के अंदर ये प्राइस गिर के 100 रुपए पे आ जाएगी, क्योंकि जब और सेलर्स आएंगे ना, 100 भी नहीं, 100 से गिर के 90 पे आ जाएगी. इनफैक्ट वो उस वक्त तक आ जाएगी जब तक फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट ना कमाएं. अब जहां तक एफिशिएंसी की बात है, एलोकेटिव एफिशिएंसी कहता है कि आपने उस पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है जिस पॉइंट तक जो प्राइस कंज्यूमर पे करने के लिए तैयार है, दैट इज द कॉस्ट दैट इज कमिंग फॉर दैट वन एक्स्ट्रा यूनिट. दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. क्योंकि देखो ना, एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसको पर डजन अगर 150 रुपये रेवेन्यू मिल रहा है, और उसको पर डजन कॉस्ट जो आ रही है वो 150 से कम आ रही है, तो वो तो बनाता रहेगा बनाता रहेगा बनाता रहेगा, वो तो अपना रिसोर्स डालता रहेगा इस इंडस्ट्री में. और वो क्यों डाल रहा है, क्योंकि उसको हर यूनिट के ऊपर फायदा हो रहा है, क्योंकि उसको जो प्रॉफिट मिल, जो रेवेन्यू मिल रहा है वो ज्यादा है कॉस्ट से, तो वो बनाता जाएगा अप अंटिल दिस पॉइंट. तो इसलिए हम इसको एलोकेटिवली रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि जब तक कंज्यूमर मार्जिनल प्रॉफिट कमा रहा है, वो उस इंडस्ट्री के अंदर अपने रिसोर्सेज डालता रहेगा, क्योंकि वो फायदा है. ठीक है. उसमें अगर उसने थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी और उसको मार्जिनल रेवेन्यू कम मिलेगा, तो वो कट डाउन करेगा फिर अपनी, क्योंकि ये रिसोर्स का मिस एलोकेशन है कि मैंने अपना रिसोर्स लगाया और मुझे अपने रिसोर्स पे अगर कम रिटर्न मिल रहा है तो मैं क्यों करूंगा ऐसा काम. तो एलोकेटिव एफिशिएंसी इज अबाउट me putting my resources where I can get the best returns out of it. I will continue to do that until P equals to MC happens. जहां तक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहते हैं कि भाई आपके पास एक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, उसमें रॉ मटेरियल भी है, उसमें लेबर भी है, उसमें मशीन भी हैं. ठीक है. ये आपके इनपुट्स हो गए. अगर आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है एक सर्टेन क्वांटिटी के ऊपर, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपने इनपुट्स को इतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है कि उनकी जो कॉस्ट पर यूनिट हुए है वो एट द रॉक बॉटम आई हुई है. प्रोडक्टिवली आपके इनपुट्स अपनी बेस्ट तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं,
इन इट्स मोस्ट एफिशिएंट वे कि आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है। आप उस पॉइंट से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा बना लेंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट यानी कॉस्ट पर यूनिट स्लाइटली ऊपर चली जाएगी, शोइंग कि मे बी यूर नॉट यूजिंग योर रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट। तो वो हम यहाँ पे बेसिकली दिखा रहे हैं। इससे ज्यादा आपको इसके डिटेल में जाने की ऑनेस्टली जरूरी नहीं है। जो हमने लिखा है दैट पीक दैट यू नीड टू डू, एंड यू नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि देखिए जी यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट स्लाइटली ऑन द अपिश है तो आप प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है, और यहां पर भी आपका एवरेज कॉस्ट स्लाइटली ऑन द अपिश है तो आप प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है इन दोनों सिनेरियोज के अंदर। तो हमने ये बता दिया बेस्ड ऑन द क्वेश्चन कि देखें जी, एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एलोकेटिव में तो आप बेशक परफेक्ट कंपटीशन लुक्स आइडियल, लेकिन प्रोडक्टिव के अंदर इट डज नॉट लुक सो आइडियल इन द शॉर्ट रन। देन यू टेक योर आंसर टूवर्ड्स द लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन के अंदर हम क्या बात करेंगे? टू गो इनटू द लॉन्ग रन, लेट्स गो इनटू द लॉन्ग रन का डिस्कशन। सो इन द लॉन्ग run, this is what I'll do. I'll continue my write up and I'll talk about that, you know, if firm is making super normal profit, then new firms will enter the industry and shift the industry supply curve to the right. This will lower the demand curve for single firms. As a result, the average revenue will fall down until average revenue is equals to average cost, and all the abnormal profit will become normal profit. तो लेकिन जी जब हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं तो रिमेम्बर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर क्या होता है कि both explicit and implicit cost, explicit and implicit costs are covered, right? आपकी opportunity cost and the cost of producing the good, they both get covered. Uh, in fact, even in the point of view of losses, you can continue writing that. इसी बारे के अंदर कि अगर फर्म लॉसेस कमा रही होंगी तो फिर क्या हो रहा होगा। सो in case if firms are making economic loss, then some firms will exit the industry and shift the supply curve to the left and raise the price
जो कि एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, prices will rise until average revenue is equals to average cost and economic loss converts to normal profit. And then what we want to do is we want to basically make a diagram. We want to make a diagram where I can show uh, the firm is making normal profits. ठीक है, we'll make the same diagram as before, लेकिन average cost की placing को थोड़ा सा adjust कर लेंगे. Okay, I can call this like P1. ये D1 कह लेते हैं. After whatever the change that was required has happened, whether it has gone up or down, doesn't matter. Marginal cost तो same ही रहेगी. The cost structure does not change. That's our marginal cost. This is the quantity equilibrium for a single firm. This is our average cost, minimizing at this point. और ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम हो जाता है थोड़ा सा इस तरीके से. This diagram particularly here shows that we are making normal profit. तो लॉन्ग रन के अंदर जो है फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट. जहां तक एफिशिएंसी की बात है, सिंस P इक्वल्स टू MC अचीव हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वी आर एलोकेटिवली एफिशिएंट. और साथ ही में एंड बिकॉज एवरेज कॉस्ट is at its minimum, there is productive efficiency. ठीक हो गया. So far this is my discussion कि किस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है शॉर्ट रन के अंदर एलोकेटिव हो सकती है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होती, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जो है आप प्रोडक्टिवली एफिशिएंट भी होते हैं, एलोकेटिव भी होते हैं. तो देयरफॉर वन कैन से दैट it seems like perfect competition is a very ideal market structure to achieve efficiency. But there is another efficiency that needs to be talked about. Okay, ji. The last type of efficiency that we have is actually called dynamic efficiency. Dynamic efficiency is not static like the other ones कि आप एक certain quantity के ऊपर देखें short run के अंदर कि क्या आप वो चीजें अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. डायनामिक एफिशिएंसी इज मोर ऑफ अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट. ठीक है, असल में डायनामिक एफिशिएंसी हैज टू डू विद इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजीज, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस. ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप करते हैं. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वी डोंट रियली सी, थ्योरेटिकली perfect competition के अंदर we don't see dynamic efficiency taking place. तो I could write because efficiency की बात हो रही है तो let me sort of like talk about this also for a second. We're almost at the end of this. So, however, perfect competition does not lead to dynamic
efficiency, which refers to the ability of firms to innovate, invest in technology, or improve production processes over time. अब क्योंकि देखो लॉन्ग रन के अंदर फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट वाली जो फर्म्स होती हैं दे डोंट हैव द मनी टू इन्वेस्ट एंड डू थिंग्स लाइक दैट, राइट? तो हम लिखते हैं कि दैट सिंस फर्म्स only earn normal profit in the long run, there is little financial incentive or retained profits to fund research and development, R&D लिख रहा हूं, ठीक है? So from the efficiency point of view, in the short run, they may achieve, productive, allocative, yeah, static कह लो. They might be able to achieve productive and allocative efficiency, but they do lack the long-term innovation and advancement and things like that. तो ये आपका जो है एक तरीके का डायनामिक एफिशिएंसी की बात हो गई. Lastly, after doing all of this is our evaluation. इवैल्यूएशन के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, हमने बोलना है प्रोडक्टिव, सॉरी, जो प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर जो हमने बोला है कि ये एक एफिशिएंट वो है, आइडियली एक एफिशिएंट स्ट्रक्चर है. Now, I want to talk about some problems with perfect competition. So, this is what my evaluation is going to look like. I can write several paragraphs क्योंकि 6 मार्क है ना इसके ऊपर, so I should write at least like 3 well-explained evaluative points. One could obviously is with the unrealistic assumptions that we've kept. जो हमें पता है कि you know perfect competition is theoretical and lacks realism. यानी रियलिटी से जो है ये थोड़ी सी जो है दूर है, ठीक है? बिकॉज जो अजम्पशंस हमने बोली है ना अबाउट द प्रोडक्ट आइडेंटिकल, ये सिमिलैरिटी, परफेक्ट, वो नहीं एग्जिस्ट करता ना. सो प्रोडक्ट सिमिलैरिटी और परफेक्ट knowledge does not exist. Consumers and producers faces uncertainties. ब्रांड लॉयल्टी होती है, एक मोहल्ले के अंदर एक जान पहचान होती है, एक कन्वीनियंस होती है. तो इसकी वजह से जो है हम कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, ऐसी अजम्पशंस ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं. रियलिटी के अंदर वी डोंट हैव मच स्पेस फॉर दीज अजम्पशंस सच. नंबर 2 आप बात कर सकते हैं. आई थिंक वीव ऑलरेडी रिटन ऊपर, बट इट माइट बी a repetition, that there is lack of dynamic efficiency.
थोड़े से रिपीटिशन है, लेकिन इवैल्यूएशन के अंदर हम बोल सकते हैं that that perfect competition achieves efficiency at a given point in time, but not over time के एक certain point के ऊपर they do achieve. If you ask the question like, should firm in perfect competition adopt dynamic efficiency or not? Honestly, it's not about them adopting it. They don't have the capacity to do it. Uh, Realistically, they might actually, but theoretically, they can't. Theoretically, they can't achieve that efficiency because जैसे हमने कहा ना कि जब आप normal profit कमाते हो तो you're not really left with much amount of money. You're just basically covering your opportunity cost and the other costs. And so you don't really have the money to do research and development. Dynamic efficiency क्या होती है कि you spend a lot of money right now in certain processes and production things which will help you in the future. Like for example, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर डायनामिक एफिशिएंसी वुड बी कि आपने इन्वेस्ट किया इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड द टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू दैट. बट राइट नाउ देखा जाए तो इट इज अ वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ कि इस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो रिसोर्स यहाँ लगाना इज नॉट अ बैड आइडिया बिकॉज ईवी तो आप फ्यूचर में रिटर्न्स देंगे. तो परफेक्ट कंपटीशन का थ्योरी वुड से दैट व्हाट, फॉरगेट अबाउट फ्यूचर के अंदर क्या होता है, आज क्या चीज ज्यादा जरूरी है. तो आप बोलोगे ये रिसोर्सेज पेट्रोल कार्स में लगाओ एंड लेट्स ट्राई टू प्रोड्यूस द मोस्ट एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट. लेकिन what you want to do is you want to compromise today on your profits and maybe efficiencies of other kind and move your resources towards R&D because future के अंदर uh, once you've developed those technologies you might be able to benefit from it. Theoretically perfect competition can't do it. लेकिन realistically हम ये देखते हैं कि फर्म्स जो छोटी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेशक बना रही होती हैं, they're able to raise capital, able to do research and development, and they are able to come up with production processes or something or the other, which gives them dynamic efficiency, which gives them consumer loyalty. तो इसकी वजह से जो है थोड़ा सा theoretical versus realism के अंदर हम बोलेंगे कि something can be discussed in that way. So, but again, theory, it lacks it. So, since firms can only make a normal profit, they lack funds for innovation. ये वही ऊपर से R&D and product improvement. लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी oligopolies होती हैं, monopolies होती हैं, because they have money, they can use those supernormal profits to spend on these dynamic efficiencies, right? तो आप उस बारे में भी बात कर सकते हो. फिर आप ये भी बात कर सकते हैं कि firms in perfect competition जो है they have sort of limited economies of scale. क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन कोई ज्यादा स्केल पे काम नहीं करती है तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी जो है को बहुत ज्यादा लो नहीं हो सकती. एक मोनोपोली जो है वो आपसे ज्यादा कंपेटिटिव रेट्स के ऊपर चीजें बना सकती है बिकॉज जब वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो दे अचीव much lower average cost as compared to these firms. तो इस तरह से आपने कुछ सर्टेन पॉइंट्स देने हैं इन द इवैल्यूएटिव पॉइंट्स. आप मार्केट फेलियर की भी बात कर सकते हैं इधर. एंड इन द एंड यू हैव टू ऑब्वियसली डू अ कंक्लूजन समथिंग लाइक इन कंक्लूजन करके my conclusion would be something like this. So I would write like to conclude or in conclusion, the
model of perfect competition can indeed be considered the ideal form of market structure because it achieves allocative and productive efficiency in theory. ठीक है? Prices reflects resource costs and firms operate at their most efficient scale. However, its assumptions makes it unrealistic in the real world. The lack of supernormal profits or abnormal profits removes incentive for innovation, and the model ignores real world complexities such as imperfect information, barriers to entry, and even externalities. ठीक है? So thus, perfect competition should be viewed not as a realistic goal, but as a benchmark model, standard against which the efficiency of other structures can be judged. So in practice, a degree of imperfect competition may lead to a better long-term uh, outcome through innovation and dynamic efficiency. So sort of you know, like this, I would go about giving a conclusion. If you notice, my conclusion is the summation of everything that I've written over and given my final viewpoint that, इतना ज्यादा perfect competition को seriously लेने की जरूरत नहीं है आपको. Because realistically, it does not work. And in fact, efficiency के point of view से imperfect markets sort of like maybe in the long run might help us more. So that's that.